Hey guys, welcome back to the channel. Happy New Year and Happy Diwali to all the viewers, all the subscribers. Uh, Q2 FY26 season has started, and some of the companies have already started posting results. I think 250 plus results have come out, including large cap, mid cap, small caps, and micro caps. And अभी मैंने जो यहाँ पे एनालिसिस किया है, तो let's get started with this. This is I think third video in this series, and in the evening again I'll post another video of next few companies. So let's get started with the first good companies like MB Agro Industries. If you see here, this is kind of company in the fertilizer sector, और 450 करोड़ का सेल इन्होंने किया है। यहाँ पे कुछ अच्छे डेटा पॉइंटर्स है विच आई वांट टू डिस्कस हियर, like 62% sales growth in Q2 FY26 they posted, EBITDA growth of 72%, EBITDA margin stabilizing in a positive direction, that is 13.7 from 13%, PAT growth 114%। तो यहाँ पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिला है, दैट मीन्स दे आर ऑपरेटिंग एट अ फुल स्विंग इन देयर कैपेसिटी। तो capacity utilization is I think close to I think it is more than 100% what they're saying, but it is close to 100%, if I'm not wrong. So full capacity से ये लोग operate कर रहे हैं owing to the good rainy season and good kharif season basically. PAT margin is again improved from 5% to 6.8%, and there is EPS growth also. So everything has gone fantastic for this company in the first half of 2026. Now what is the story here? Story यहाँ पे क्या है ना, ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर्स लाइक एनपीके, डीएपी एंड single phosphate, basically SSP, which they call it. And this is also backward integrated, so operating leverage इनको हमेशा मिलेगा जब 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 ये लोग अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करेंगे। दे कवर ऑलमोस्ट 11 स्टेट्स और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो स्टोरी यहाँ पे ये है कि इनका करंट कैपेसिटी अभी जो है वो है 0.5 metric ton. Now what they're saying, they are into the capex mode, and with the capex they want to increase their capacity by 150%। वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे हो जाएगा, तो कैपेसिटी टोटल हो जाएगी 1.2 मेट्रिक टन। दिस इज ह्यूज। नाउ अभी ये कैसे करेंगे, इनके जो दो प्लांट्स है, इन वन इन धुले एंड वन इन सागर, विच इज धुले इज इन महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र, एंड देन सागर इज हार्टलैंड एमपी बेसिकली। तो यहाँ पे ये लोग मैंने कैपेसिटी एक्सपांड करेंगे, और धुले से जो कैपेसिटी एक्सपांड होगी उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर 26 से, दैट मीन्स आई मीन फ्रॉम दिस मंथ बेसिकली। एंड सागर वाला जो है वो फर्स्ट ऑफ 2027 से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पे स्टोरी या एक पार्ट स्टोरी का तो ये हो गया कैपेसिटी एक्सपांशन। दूसरा पार्ट जो ये है कि इंडिया ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट सॉरी 50% ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो रेगुलर फर्टिलाइजर तो हम लोग खुद बना लेते हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये डीएपी इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो दिस कंपनी इज इन अ मोड ऑफ काइंड ऑफ मेकिंग ए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ डीएपी। तो ये क्या कर रहे हैं, एनपीके को दे आर काइंड ऑफ putting some fortified supplements or micronutrients into it, and they're making it as DAP, DAP substitute, and that way they are going to capture the market accordingly. So इसीलिए ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और इनको यहाँ पे ग्रोथ यहाँ से दिख रही है। अनदर पार्ट विच इज थर्ड पार्ट इज दैट जो रॉ मटेरियल लगता है बेसिकली अमोनिया, बिकॉज दीज आर ऑल फॉस्फेट बेस्ड एंड अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स। सो एक जो ग्रीन अमोनिया का इनिशिएटिव चला हुआ है, so this company has been selected as a preferred buyer of green ammonia. So ammonia generating जो companies है, I am forgetting the name of those companies, those are also listed companies. So those from those companies, this MB Agro will buy the ammonia to manufacture the fertilizer. So it's a kind of organic initiative which government of India has taken, and these guys are preferred buyer. So these are the 3 points. Now if you see here, what guidance they have given for FY26, coming to the last part of the story, is that they say that फर्स्ट हाफ 2026 में इन लोगों ने अच्छा खासा ग्रोथ अचीव किया है, विच इज आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक 70 to 80% ग्रोथ। एंड इन सेकंड हाफ दे वांट टू रिपीट दैट स्टोरी, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इनटू दैट। नाउ इसमें एक एंगल जो ये है कि खरीफ सीजन अच्छा था बिकॉज ऑफ द गुड रेनी सीजन। नाउ रबी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी गुड, राइट, बिकॉज ऑफ दिस गुड रेनी सीजन, तो ये आगे कंटिन्यू करेगा। बट ये तो आई थिंक दे विल बी एबल टू अचीव दिस एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ अराउंड, इन लोगों ने फर्स्ट हाफ में अराउंड 800 850 करोड़ किया, सेकंड हाफ में भी उन्होंने वही नंबर दिया है 800 850 करोड़ का। तो 1700 करोड़ 1750 करोड़ तक ये लोग जा सकते हैं विद एक्सपेक्टेड पैट ऑफ अराउंड 90 to 120 करोड़ के रेंज में पैट रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पैट मार्जिन विच दे अचीव ओवरऑल ईयरली करेंगे, ठीक है।
अभी यहाँ पे स्टोरी क्या है ना कि जो नया वॉल्यूम ऐड करेंगे ये लोग, तो इसका जो है इसका कंजम्पशन विल डिपेंड अपॉन द नेक्स्ट नेक्स्ट खरीफ सीजन। तो नेक्स्ट ईयर रेनी सीजन कैसा रहेगा, नेक्स्ट ईयर मानसून कैसा रहेगा, हु नोज दैट। सो दैट इज द रिस्क बेसिकली विच दिस कंपनी कैरीज एंड दिस इन्वेस्टमेंट विल कैरी। तो फॉरवर्ड पी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो दिस फॉरवर्ड पी फ्लक्चुएट्स फ्रॉम बेस टू बेस लाइक 32 to 43 के रेंज में फ्लक्चुएट करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द पैट विच दे अचीव इन द फ्यूचर, जो मैंने आपको रेंज दिया। और ग्रोथ इज लाइक 60%, एनुअल ग्रोथ मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। सो आई एम नॉट फैक्टरिंग क्वार्टर इन क्वार्टर ग्रोथ जैसे बाकी बाकी लोग करते हैं कि एक क्वार्टर में बढ़ गया तो उसके हिसाब से फॉरवर्ड पी एडजस्ट कर देंगे। सो आई प्रिफर टू ऑलवेज एडजस्ट द फॉरवर्ड पी बेस्ड अपॉन द एनुअल ग्रोथ, बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। सो एनुअल ग्रोथ इज लाइक 60%, एंड द रिस्क मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया, दैट इज साइक्लिकल नेचर ऑफ दिस बिजनेस and the next rainy season ka outlook. So that is the only risk associated with this. Apart from that, the company looks fantastic. I mean, all other agricultural companies are on the same path actually, but this one has given stellar numbers. Now another company which in our list is the GM Breweries. GM Breweries जो है ये बेसिकली देसी दारू बनाने वाली कंपनी है। दे मैन्युफैक्चर, फुल उनका मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ कंट्री लिकर में, विच इज इंडिया मेड इंडियन लिकर, उसको बोलते हैं IMFL। देर इज अनदर कैटेगरी कॉल्ड इंडिया मेड फॉरेन लिकर, विच इज लाइक विस्की एंड स्कॉचेस एंड ऑल द ब्रांडेड विस्कीज। वो अलग कैटेगरी है, लाइक एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड अलाइड ब्लेंडर्स, वो सब लोग मैन्युफैक्चर करते हैं ना। GM ब्रेवरीज लाइक 2500 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, 180 करोड़ का सेल उन्होंने Q2 FY26 में किया। नाउ दे ब्रॉट अराउंड 21% ऑफ द सेल्स ग्रोथ। नाउ यहाँ पे स्टोरी क्या बनता है ना, यहाँ पे स्टॉक में ट्रैक्शन इसलिए आया है क्योंकि लास्ट, अगर आप देखोगे लास्ट 4 to 5 क्वार्टर से दे वर पोस्टिंग अराउंड 6 to 7%, आई थिंक 6% मैक्सिमम ग्रोथ वाज देयर। एंड ईयर बैक एग्जैक्टली अगर मैं देखता हूं तो नेगेटिव ग्रोथ था। नाउ ऑल ऑफ ए सडन दे पोस्टेड अ 21% growth and EBITDA growth of 60%, which is huge. EBITDA margin also improved from 18 to 25%. PAT growth of 40%. PAT margin again see 14 to 19%, and there is EPS growth also. So shareholders के लिए पैसा बना है। बट द स्टोरी यहाँ पे क्या है ना कि ये जो कंपनी है ये कोई गाइडेंस वगैरह देते नहीं, ये लोग ना कोई कॉन कॉल करते हैं ना कोई PPT छोड़ते हैं। तो प्रॉब्लम मेरे लिए ये है ना, टू 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 इन्वेस्ट इनटू कंपनीज लाइक दिस इज बिकॉज आई डोंट नो देयर फ्यूचर प्लान्स, आई डोंट नो व्हाट इन नेक्स्ट क्वार्टर कितना ग्रोथ में एक्सपेक्ट करूँ इस कंपनी से, राइट। तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे एटलीस्ट इन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे स्टोरी दिखती नहीं है। तो ये बेसिकली मैंने आप जैसे आपको बोला कंट्री लीकर बनाने वाली कंपनी है, लाइक 50,000 केसेस पर डे ये लोग करते हैं, और दे आर मोर इनटू महाराष्ट्र सेंट्रिक एंड मोर इन द 3 डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली, मुंबई, थाने एंड पालघर, राइट। तो इसमें एक और स्टोरी ये था कि इवन आफ्टर अचीविंग दिस 21% स्टेलर ग्रोथ, इफ यू सी द नेट कैश फ्लो वाज लाइक डाउन फ्रॉम 100 crores to 40 crores ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करते हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस दे पेड टू द गवर्नमेंट। तो वो टैक्सेस लास्ट ईयर उनके थे ऑलमोस्ट लाइक 100 crores, एंड नाउ दिस ईयर दे पेड लाइक 1000 crores ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो ये एक रेगुलेटरी रिस्क ये वाले बिजनेस में तो है ही। इसीलिए फॉर जो डिस्टिलरीज जो भी जितनी भी कंपनीज है, आई प्रिफर दैट दे टॉक अबाउट देयर बिजनेस, दे डू कॉन कॉल, सो दैट वी हैव सम अंडरस्टैंडिंग, राइट, of future basically. So that is the story of GM Breweries, and that is my take on this particular company. Next company is TCS. Again, it is 2% growth, so I'm not going to talk about that, but that particular company. Let's go to the next company, which is 5paisa Capital, which is in the discount broking का है। बहुत ही बुरी हालत में कंपनी है, बट आई थिंक इन बॉटम आउट हो चुकी है, क्योंकि सेल्स ना कम हो रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, दे आर फ्लैट बेसिकली ईयर ऑन ईयर अगर देखोगे तो बॉटम यहाँ पे बन चुका है। तो अगेन ग्रोथ तो कोई है नहीं, -23% ग्रोथ है। तो यहाँ पे ग्रोथ का कोई डिस्कस करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। 5paisa कैपिटल में इसलिए ट्रैक करता हूँ क्योंकि मुझे ये जानना होता है कि मार्केट में बॉटम हो चुका है क्या, और मार्केट में एक्चुअली एक्टिविटी क्या चल रही है इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर ऑन ऑप्शंस, इन टर्म्स ऑफ द जो ट्रेड्स हो रहा है। तो इफ यू सी हियर व्हाट 5paisa हैज गाइडेड दैट द सेकंड हाफ विल बी सिमिलर टू फर्स्ट हाफ, इट इज फॉर देम। नाउ कस्टमर बेस उनका 50 lakhs हो चुका है, 20% कस्टमर एक्विजिशन उनके बढ़ गए क्वार्टर क्वार्टर अगर कंपेयर करते हैं। तो जो एक पैरामीटर होता है एवरेज डेली टर्नओवर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। नाउ दैट एवरेज डेली टर्नओवर रोज 18%,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज साइक्लिकल बिजनेस है। जैसे एंजल उनका हम देखेंगे तो वैसे ही यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज 18% का, 18% का यहाँ पे growth आ चुका है in average daily turnover. That means what market has kind of bottomed out, and market has started rising in upward direction. Now this trend has, I think last quarter में भी इन्होंने ये hint दिया था। I think फेब या मार्च अप्रैल 2025 से ये ट्रेंड चल चुका है। तो बाकी तो यहाँ पे डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रोथ ही नहीं है। -2% ग्रोथ इन ब्रोकरेज इनकम, अलाइड ब्रोकरेज इनकम में 9% का छोटा सा ग्रोथ आया है, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी ग्रोथ ही है बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा बोलने जैसा है नहीं। दैट्स व्हाई आई डिड नॉट डू द वैल्यूएशन एक्सरसाइज, बट द पॉइंट टू बी टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन कॉल इज दैट Atto has risen over 43% from September 2025। ओवरऑल मार्केट में ये जो एवरेज डेली टर्नओवर ये बढ़ चुका है। दैट मीन्स व्हाट मार्केट सेंटिमेंट्स आर इम्प्रूव्ड एंड देयर इज स्टेबिलिटी। तो वोलेटिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है मार्केट में। तो दैट इज द पॉइंट विच आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन कॉल, एंड देन यूज दिस डेटा टू अप्लाई योर इन्वेस्टमेंट लॉजिक टू अदर कंपनीज, राइट। नेक्स्ट कंपनी इज टाटा एलेक्सी। अगेन यहाँ पे डी ग्रोथ है, आईटी सेक्टर की कंपनी, बेसिकली डिजाइन में ये लोग है। तो 918 करोड़ का रेवेन्यू किया है, -4% का ग्रोथ है। देर इज नेगेटिव ग्रोथ इन एबिटा, नेगेटिव ग्रोथ इन पैट, नथिंग टू डिस्कस इन द फिनेंशियल्स, बट वी हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर में कंपनी क्या बोल रही है, लेट्स सी द गाइडेंस। तो ये लोग का क्या है, बेसिकली तीन बिजनेस वर्टिकल्स है बेसिकली। ट्रांसपोर्ट बिजनेस विच contributes around 53% ऑफ द रेवेन्यू, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस वाला जो बिजनेस है, एंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो मीडिया कम्युनिकेशन तो फ्लैट ही है, बट कंपनी सीइंग सम ट्रैक्शन इन सेकेंड हाफ 2026 में। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, दैट मीन्स ऑटो और हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस में यहाँ पे कंपनी को एक अपसाइड होता हुआ नजर आता है। तो अगर आप देखोगे कंपनी का गाइडेंस सीधा सीधा ये है कि सेकेंड हाफ विल बी फार बेटर देन first half 2026. So these are the words they have used. They say far better. That means what? Now you remember what guidance they have given. Far better than a second half, and they are saying that FY27 में, FY26 में I don't know कितना ग्रोथ करेंगे ये लोग। पॉजिटिव ग्रोथ कर ले वो भी बहुत है। FY27 में दे आर आइंग फॉर डबल डिजिट ग्रोथ इन ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर सेगमेंट। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पे। सो 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 ये कंपनी कैसा है ना, माइनस नेगेटिव ग्रोथ से ये लोग पॉजिटिव डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और ये तो यहाँ पे ट्रैक्शन यहाँ पे स्टॉक में आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। बट दिस इज स्टोरी ऑफ वन FY27। नाउ लेट्स सी व्हाट कंपनी हैज टू डिलीवर इन सेकेंड हाफ। तो अगर सेकेंड हाफ थर्ड क्वार्टर में कुछ पॉजिटिव हिंट्स मिलते हैं, देन probably this story may pan out in FY27 with double digit growth, and that would be good to the company. So no valuation exercise for Tata Elxsi, but the positive signs are here since company is moving from negative sales growth to the positive sales growth, and that is the trend of reversal. Yeah. So this is all about Tata Elxsi. Now moving on to the next company, which is Elecon Engineering। हेवी इंजीनियरिंग में ये लोग इन्वॉल्व है। लास्ट क्वार्टर में इन लोगों ने आई थिंक 25% का ग्रोथ पोस्ट किया था, बट दैट वाज आल्सो कमिंग फ्रॉम 43% से 25 तक, 25% में जा रहे थे। अभी ये 25 से 13% में जा रहे हैं। तो दैट मीन्स व्हाट, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सीधा सीधा आपको यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ नजर आता है। 578 करोड़ का Q2 FY26 में इन लोगों ने रेवेन्यू किया है। 12% एबिटा ग्रोथ विच इज पुअर, EBITDA margin 22% flat. There is no growth in the PAT growth also. PAT margin is also degraded from 17 to 15%. So all in all, there is a story of falling pace of sales growth from 41% to 25 to 13% in the recent quarter. Now they have unchanged their guidance. Basically, they want to achieve like 2650 करोड़ का ये लोग रेवेन्यू करना करना इनका टारगेट है FY26 में। तो अब तक इन लोगों ने फर्स्ट हाफ में 1000 करोड़ तो कर लिया है। दैट मीन सेकेंड हाफ में इनको कितना करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1500 करोड़ तो करना पड़ेगा, विच इज स्टीप बेसिकली। तो आई एम नॉट श्योर वेदर दे विल बी एबल टू अचीव दैट। थर्ड क्वार्टर में एग्जीक्यूशन कैसा है उस पर बहुत सारा डिपेंड करेगा ये पूरा रन रेट। एंड व्हाट दे आर सेइंग इज दैट Q4 विल बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर
बट लेट्स सी Q3 में ये लोग कितना रन रेट मारते हैं, उसके हिसाब से ना ये देखना पड़ेगा। बट अगर अगर ये लोग अचीव भी कर लेते हैं 2650 करोड़ का, तो इट्स ईयर ऑन ईयर 18% का ही सेल्स ग्रोथ आता है। तो ये बेसिकली क्या, ये लोग गियर मैन्युफैक्चर करते हैं और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। जो एस कंस्ट्रक्शन है ना, उसके पैरेलल ये कंपनी है, उसको कंपेयर कर सकते हो आप। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो इफ यू सी, एक्सपेक्टेड सेल्स कुड बी इन FY 2026 अराउंड 2600 करोड़ विद 15% पैट मार्जिन अगर पकड़ता हूँ तो इन अ रेंज ऑफ 390 to 400 करोड़ से पैट आ सकता है विद फॉरवर्ड पी ऑफ अराउंड 31 to 40 के बीच में फॉरवर्ड पी रह सकता है विद ग्रोथ ऑफ 18 to 19%। तो ये स्टोरी क्या बनती है ना, एंड इन द एंड ऑफ द डे इज दैट फॉलिंग पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ प्लस यहाँ पे आप ज्यादा पे कर रहे हो फॉर अ लो ग्रोथ इंजन। एंड थर्ड पॉइंट इज we need to track the execution in second half, right? So that is the story for Elecon Engineering. Let's move on to the next company. This is new entrant in our tracking list, that is Yash High Voltage. तो ये लोग ना जो ट्रांसफॉर्मर की बुशिंग्स होती है ना, which actually kind of act as a insulator in my understanding, but you can google it and you can see the bushings. There are different types of bushings which are there for transformer. तो ये जो भी ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनीज है ना, उसको ये लोग वो बुशिंग सप्लाई करती है। तो वन ऑफ द ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी जो ऑलरेडी हमारे ट्रैकिंग लिस्ट में है, वो है वो शिलचर टेक्नोलॉजीज है, एंड देन द ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया है, हिंद रेक्टिफायर्स है, एंड अदर मेनी कंपनीज है, CG पावर है, राइट। तो ये सब जो कंपनीज है, इनको ये लोग बुशिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो दे compete विथ, आई थिंक, जी इलेक्ट्रॉनिक्स और हिताची एनर्जी के साथ ये लोग compete करते हैं। इफ यू सी देयर रिजल्ट, बेसिकली रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। तो ये लोग हाँ 6 मंथली रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट हाफ 2026 में दे पोस्टेड अराउंड 100 crores ऑफ द रेवेन्यू, विच इज 78% काइंड ऑफ ग्रोथ। EBITDA growth is 90%. EBITDA margin is moving positive, like 19 to 22%. PAT growth is 133%, which is also good. So they got operating leverage. That means they're also operating in a volumes. PAT margin is also increased from 11 to 13%. EPS growth is also there. So these are all fantastic numbers. If you see, what they're guiding is that second half better will be better than the first half. Or they are saying that total FY 2026 may, they are not given the exact number, but they are saying they can do 200 crores plus revenue, right? So 200 crores plus revenue they want to do. Long term उनका जो growth target है 35 to 40% CAGR they want to achieve. एंड जो आईपीओ से जो जितना भी पैसा मिला है, वो ये लोग ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन में डालने वाले हैं। उससे इनकी कैपेसिटी बढ़ने वाली है ऑलमोस्ट लाइक 600 से 700 करोड़। नाउ अगर ये आईपीओ से और ये लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट हाफ 2027 से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ नाउ लेट्स सी, एक्सपेक्टेड सेल्स FY 2026 में हो सकता है ऑलमोस्ट अराउंड 200 करोड़। एक्सपेक्टेड पैट कुड बी अराउंड 26 करोड़। दिस इज बेस्ड अपॉन द करंट पैट मार्जिन। नाउ अगर FY 2027 का मैं कैलकुलेट करता हूं, तो ये 600 करोड़, 600 से 700 करोड़ जो ये लोग का रेवेन्यू है, तो उसमें 100% यूटिलाइजेशन तो नहीं रहेगा। तो लेट्स से 400 करोड़ का भी ये लोग रेवेन्यू करते हैं विद अंडर यूटिलाइजेशन। दैट मीन्स व्हाट एक्सपेक्टेड पैट इन FY 2026 कुड बी अराउंड 39 करोड़ और 40 करोड़। तो FY 2027 could be a different story here for this company. Let's see, the valuation in FY 2026 could be around like forward P would may range from 50 to 60 based upon the PAT which I calculated, that is 26 crores to 28 crores की रेंज में रह सकता है। एंड ग्रोथ आप 33% ईयर ऑन ईयर, 33% प्लस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी आज की डेट में पता नहीं कि 200 से कितना ऊपर करेंगे। तो जितना ऊपर करेंगे उसके हिसाब से 33+ यहाँ पे मैंने लिखा है। एंड दिस FY 2026 में स्टोरी कुड बी डिफरेंट। ये बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती है FY 2026 में, क्योंकि FY 2026 में I did not consider 600 crores of total revenues, but I considered only 400 crores of revenues। और 200 करोड़ भी अगर करते हैं FY 2026 में, तो FY 2027 में अगर 400 करोड़ किया, तो इट्स लाइक 100% ग्रोथ। and it will become 100% growth engine, which will move from 33% to 100%। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको एक स्नैपशॉट में दे रहा हूँ। अ ग्रोथ इंजन विच इज मूविंग फ्रॉम 33% टू 100%, राइट। एंड फॉरवर्ड पी आपका कम हो जाता है। तो इट बिकम्स अ क्लासिक केस वेयर ग्रोथ इज हाई एंड पी इज लो। एंड
तो ये एक वैसा केस बनता है, दैट्स व्हाई दिस इज इंटरेस्टिंग, बट द डाउन साइड ओनली हियर इज दैट ये जो ट्रांसफार्मर के बुशेस जो है, ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में तो डिमांड तो चल पड़ी है, बट ये लोग कैसे उसमें मार्केट शेयर ले पाते हैं, क्योंकि दो बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे है, हिताची एनर्जी है और जी इलेक्ट्रिकल्स है। तो इनसे ये लोग कितना शेयर ले पाते हैं, ये कैसे करते हैं, क्योंकि आई थिंक दिस इज अहमदाबाद बेस्ड कंपनी, तो वो बहुत देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड दिस FY 26 कैपेसिटी जो है वो, दिस इज अ गेम चेंजर फॉर दिस कंपनी। सो दिस इज माय टेक ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी, सो कीप ट्रैक ऑन दिस वन। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंपनी विच वी रिसेंटली डिस्कस इज दिस सोलर सेक्टर में वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, विच इज अ पार्ट ऑफ, विच इज सब्सिडरी ऑफ वारी एनर्जीज बेसिकली। तो लास्ट क्वार्टर में क्या स्टोरी था ना, वारी रिन्यूएबल्स लाइक 155% से ग्रो कर रहा था, वेराज वारी एनर्जीज was growing at 30% only. Now this quarter story has changed. Wari renewables has grown at 47%, and if you see, I think Wari Energies has grown more than, I think more than 70-80% से grow किया है। बट इट डिपेंड्स अपॉन, ये जो है ना क्वार्टर टू क्वार्टर नंबर में वेरी होता रहता है, कहीं हाई बेस है कहीं लो बेस है, दैट यू नीड टू कीप ट्रैक ऑन दैट। बट ओवरऑल दैट्स व्हाई यू नो लुकिंग एट ओवरऑल एनुअल ग्रोथ। नाउ इफ यू सी 775 करोड़ का रेवेन्यू किया है, और इनका जो मेट्रिक मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी आपको बोला है, तो इनका पर मेगावाट, इट यूज टू बी अराउंड 1.2 crores, and now it has come down to let's say 0.8 crores, but company has clarified in the recent con call, जो करंट कॉन कॉल हुआ है, कि ये जो पर मेगावाट का जो एक इक्वेशन है, 1 मेगावाट से कितना कितना आपको पर पर रेवेन्यू मिलता है, तो वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द द प्रोजेक्ट विच दे हैव टेकन, राइट। तो कभी कभी ये पर मेगावाट 0.8 crores रहेगा, या फिर 1.2 crores, तो 0.8 to 1.2 crores की रेंज में हो सकता है, ठीक है। तो एबिटा ग्रोथ 119% का फैंटास्टिक ग्रोथ आया है। एबिटा मार्जिन इफ यू सी 14 से 20%। तो यहाँ पे स्टोरी ये है ना, एबिटा मार्जिन के लिए जब कंपनी को पूछा कॉन कॉल में कि आप ये 20% का एबिटा मार्जिन सस्टेन कर पाओगे, तो दे हैव एन इंटरेस्टिंग आंसर हियर विच दे हैव गिवन। तो दे सेड दैट वी आर हैप्पी विथ 15% मार्जिन, सो व्हेनेवर दे टेक द प्रोजेक्ट, they always take a project which will yield a EBITDA margin of 15%, so that way their margin is shielded, right, protected। now अभी क्या होता है ना, जैसे ही यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है और कंपनीज के जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्ले करती है ना यहाँ पे, सो व्हाट दे आर सेइंग, व्हेनेवर वी टेक दैट प्रोजेक्ट वी ऑलवेज ब्रिंग इन आवर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, और उससे क्या होता है कि वी ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज दैट एबिटा मार्जिन फ्रॉम 15% to 18% और 19% और 20%, एंड दैट्स व्हाट दे वांट टू डू। So overall, they're guiding for 15% plus, but depending upon the operational efficiency, that margin could hover around 19 to 20%. So that is the one interesting part from the Vari Renewables का कॉन कॉल। नाउ पैट ग्रोथ इफ यू सी 115% है, पैट मार्जिन 10 से 15% का, ईपीएस ग्रोथ इट्स 117% का ईपीएस ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नाउ इफ यू सी ईयर FY 26 का गाइडेंस क्या दिया है कंपनी ने, तो ये बिजनेस मॉडल तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन द बिजनेस मॉडल इन डिटेल, एंड आई विल अगेन एक्सप्लेन द बिजनेस मॉडल इन डिटेल व्हेन आई डू द होल सेक्टर। जब एट द एंड ऑफ दिस क्वार्टर हम करेंगे तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मीनवाइल यू कैन पॉज द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। तो बेसिकली सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, सोलर सेल बनाते हैं, ईपीसी करते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करते हैं, and they recently entered into the BESS as well as hydrogen cell manufacture हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। तो गाइडेंस अनचेंज्ड है कंपनी का, विच इज अराउंड डूइंग ऑलमोस्ट लाइक 2800 से 2900 करोड़ में कम मेगावाट पर ईयर करने का कैपेसिटी, विच ट्रांसलेट्स इनटू लाइक 2700 से 2800 करोड़, विच इज 80% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ये लोग कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट हाफ में इन लोगों ने 1378 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लिया है, और FY 25 में टोटल रेवेन्यू था 1500 करोड़ का, 1600 करोड़ का, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, दे आर वेल अहेड ऑफ देयर टारगेट, राइट। तो ये ओवर अचीव भी हो सकता है, 2700 करोड़ क्रॉस कर सकते हैं बेसिकली, दैट्स व्हाट आई वांट टू से हियर। और सेकंड हाफ सोलर कंपनीज के लिए बेटर रहता है, बिकॉज फर्स्ट हाफ में मानसून होता है, इवन आफ्टर दैट दे अचीव 1378, दैट मीन्स व्हाट, दे हैव इंक्रीज देयर कैपेसिटी, जो एसेट्स बोलेंगे उनको, या फिर जो प्रोजेक्ट अंडर मेंटेनेंस है वो उनके बढ़ गए हैं डेफिनेटली। So FY 26 PAT could range in between 390 to
410 करोड़ के रेंज में रह सकता है। इफ यू सी ऑर्डर बुक, इनका जो करंट ऑर्डर बुक है विच इज अराउंड 3.48, दैट इज रनिंग ऑर्डर बुक, एंड दे वांट टू एग्जीक्यूट बिटवीन 12 to 15 मंथ्स। तो यहीं से आपका रन रेट आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इन लोगों ने फर्स्ट हाफ में 1621 मेगावाट, राइट, इतना इन लोगों ने अचीव कर लिया है। एंड तो दे कैन इजीली डू, आई मीन 12 से 15 महीने में अगर ये 3400 मेगावाट करने की सोच रहे हैं, तो ये अगर ये सोचिए, आप कैलकुलेट करके देखिए, ये रेवेन्यू FY 2026 का एक्सीड कर जाएंगे। नाउ इट्स जस्ट दैट दिस, ये जो मेट्रिक है ना, ये दिस आई वांट दिस मेट्रिक टू बी क्लोजर टू 1.2 करोड़, सो दैट दे कैन इजीली क्रॉस द रेवेन्यू। ठीक है, तो दैट इज द थिंग बेसिकली। एंड इफ यू सी द वैल्यूएशन, अगेन द वैल्यूएशन रिमेन सेम, बिकॉज स्टॉक में कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं है, कुछ प्राइस में ज्यादा मूवमेंट हुई ही नहीं है, इक्का दुक्का मूवमेंट है। वॉल्यूम्स, बट वॉल्यूम स्पाइक्स तो काफी अच्छे है, वॉल्यूम का डेटा अच्छा है। सो इफ यू सी द फॉरवर्ड पी कम्स अराउंड 30, एंड विच में रेंज बेस्ट केस में और बेस केस में 35 to 40। ग्रोथ परसेंटेज देखिए 70 to 80%, या फिर मोर देन दैट दे कुड अचीव डिपेंडिंग अपॉन द एग्जीक्यूशन इन द सेकेंड हाफ। So this is a classic case of again high growth and low P, and clearly this company is kind of undervalued company in my opinion. But this is just a pure my opinion based upon the facts which I'm posting, not a buy and sell recommendation. You need to take this video as a starter, reevaluate your numbers, and then take the decision. Right. Now moving on to the next company, which is Just Dial, which is a consumer services. आपको सब लोगों को पता ही है, Naukri.com। तो आई थिंक दिस इज नॉट Naukri.com, आई थिंक वो इन्फो एज है। सो दिस इज जस्ट डायल, वो जो अमिताभ बच्चन जी ऐड करते रहते हैं ना, उसका। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं है, 6.4% का ग्रोथ है, एबिटा में कोई ग्रोथ नहीं है, पैट में कोई ग्रोथ नहीं है। सो नॉट रियली, नॉट नथिंग टू टॉक अबाउट दिस कंपनी, एंड देर इज नो गाइडेंस वगैरह भी कुछ नहीं है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और कोई ऑन टॉप ऑफ दैट कोई कौन कौन नहीं। सो नॉट रियली actually interested in talking about this particular company. Now, next company in the list is SG Finserv. Right, this is interesting company. Again, last time मैंने जैसे बोला था, this is a turnaround company। इन लोगों ने RBI लाइसेंस के लिए जो अपना AUM को कम किया था, now they have started increasing the AUM, that means what वो डिस्पर्सल बढ़ा रहे हैं। तो दिस कंपनी का जो एकदम सिंपल से बिजनेस मॉडल क्या है, ये लोग सप्लाई चेन को मैन्युफैक्चर करते हैं, वर्किंग कैपिटल जो लगता है उसके लिए जो भी फाइनेंसिंग लगती है उसको ये लोग फाइनेंस करते हैं, एंड देयर फाइनेंस इज काइंड ऑफ सिक्योर्ड फाइनेंस बेसिकली। तो यहाँ पे जीरो एनपीएस होते हैं, क्योंकि ये जो सप्लाई करते हैं, ये बड़े बड़े जो वेंडर्स है लाइक टाटा, अदानीज एंड अंबानीज और वेदांता और बहुत सारी जो कंपनीज है, इफ यू गो थ्रू देयर प्रेजेंटेशन, इन सबको ये लोग फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े कंपनीज है, इनको ये लोग एंकर्स बोलते हैं। दे हैव अ एग्रीमेंट विद दोज एंकर्स, and under that agreement, whatever the loan they are providing to the vendors of those anchors, they cannot actually default that loan। अगर वो डिफॉल्ट करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा अंबानी से या अदानी से, उनके जो वेंडर से उनको। तो ये एक अरेंजमेंट है, and because of that arrangement there is zero NPA for this particular company। So if you see here, if you see the sales growth 142% का किया है, पैट मार्जिन भी अच्छे से, आई थिंक पैट ग्रोथ इज 100%, एबिटा ग्रोथ इज 86%। मार्जिन में थोड़ा सा डाउनग्रेड तो यहाँ पे है। यहाँ पे एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। द पॉइंट टू बी कंपेयर्ड और पॉइंट टू बी नोटेड इज द AUM। तो AUM को जो था, आई थिंक लास्ट क्वार्टर में वो था, आई थिंक 2500 करोड़, शायद 2400 करोड़। अभी हो गया 2878 करोड़, विच इज लाइक 15% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ। तो व्हाट कंपनी सेइंग, दे विल बी इजीली एबल टू मेंटेन ये जो 15% क्वार्टर क्वार्टर का ग्रोथ है ना, दैट इज गुड। तो ये मेंटेन कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर, तो ये ज्यादा ही दिखेगा। अभी 250% का ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि लो बेस है। क्योंकि आरबीआई का लाइसेंस लेने के लिए कोई इन्होंने एवीएम को इंक्रीज ही नहीं किया, ऑलरेडी एक्चुअली डिक्रीज किया। तो वो लो बेस से आपको ईयर ऑन ईयर तो इफेक्ट ज्यादा ही दिखेगा। दैट्स व्हाई यू नीड टू कंपेयर दिस कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर until they reach to the point where they started increasing the ये जो AUM है। तो मतलब क्या, Q1 या फिर Q4 FY 2025, दैट इज द पॉइंट।
जब तक वो Q4 FY 2025 तक नहीं पहुंचते तब तक आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर इसको कंपेयर करना पड़ेगा। दैट इज माय ओपिनियन। सो FY 2026 में इन लोगों ने गाइडेंस दिया है एयूएम का, वो लोग 4,000 करोड़ का कर लेंगे, और FY 2027 में 6,000 करोड़ का कर लेंगे। एक्सपेक्टेड सेल्स कुड बी अराउंड बेस्ड अपॉन द 4,000 करोड़ का एएम कुड बी अराउंड 250 से 300 करोड़ का। अब इन लोगों ने बोला था कि हम लोग पैट जो अचीव करेंगे इन FY 2026, इनिशियली बोला था 150 करोड़ का, बट नाउ दे हैव डाउनग्रेडेड दैट गाइडेंस। और उन्होंने बोला है कि जो एंकर्स हैं हमारे वही अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनके उनके फाइनेंशियल्स में ही ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आप देखोगे सारे बड़े बड़े एंकर्स है ये। एंकर्स में अभी जो टॉप निफ्टी 50 कंपनीज है, अभी ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ कहाँ पे है, राइट? तो इसीलिए अगर वो ही ग्रोथ नहीं कर पा रहे, वहीं वहीं पे वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है उनके नंबर्स में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी लोन की जरूरत कम पड़ती है, राइट? क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम कम है इसलिए। तो दे हैव डाउनग्रेडेड दैट गाइडेंस टू 120, 100 से 120 करोड़ का ये लोग करेंगे, तो ये एक निगेटिव चीज है। तो दैट इज वन। बट इवन इवन इफ दे डू 120 करोड़, ठीक है, जीरो एनपी वाला कंपनी अगर ये है, तो भी आपका फॉरवर्ड पी बेस्ट केस में आता है 17 और बेस केस में आता है 20 से 25, ठीक है। विथ ग्रोथ ऑफ 60 to 70% ऑपरेटिंग इनकम का ग्रोथ कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, जो सेल्स है उसका ग्रोथ आता है 60 to 70%। और एयूएम का ग्रोथ एक्चुअली कंपेयर करना इज नॉट राइट एट द मोमेंट, सिंस वो लो बेस बना हुआ है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर वो 15% का ग्रोथ यहाँ पे है। सो दैट्स व्हाई आई एम कंपेयरिंग द ऑपरेटिंग इनकम वाला ग्रोथ विच इज 60 to 75% ग्रोथ। सो क्लियरली दिस इज अगेन केस ऑफ अंडर वैल्यूड कंपनी, हाई ग्रोथ, लो पीई। द ओनली नेगेटिव पॉइंट इज दैट they downgraded the guidance of PAT, but उस इन स्पाइट ऑफ दैट ना, चीज चीज ये है ना कि कोई कंपनी अगर ग्रोथ में है, और अगर आप देखोगे कि अभी ये निफ्टी 50 कंपनीज में ग्रोथ नहीं है जो भी इनके बड़े बड़े एंकर्स हैं, बट आर दे गोइंग टू रिमेन इन द सेम स्लो पेस जो है? नहीं रहने वाला ना, तो वो बढ़ेगा ही। तो इफ यू थिंक ऑफ थिंक इन दैट वे, so that way company looks stable, and they're going in a positive direction. So I would give more weightage to their quarter and quarter increase जो maintain कर रहे हैं ना 15%। that point is very important, that's why this company is clearly undervalued in my opinion। okay, so let's move on to the next company which is again this GG ऑटोमोटिव कंपनी। तो ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है बेसिकली। ये मैन्युफैक्चर करते हैं गियर्स, पिनियंस और गियर बॉक्सेस, तो बेसिकली ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 27% का ग्रोथ पोस्ट किया है विच इज गुड। एबिटा मार्जिन भी अच्छी तरह जा रहा है 14 to 19%, और पैट मार्जिन भी जा रहा है 6 to 10%। बट इश्यू मेरे लिए इस कंपनी में क्या है ना, नो पीपीटी, नो कॉन कॉल। सो फॉर मी इवन इफ दे अचीव 100% ग्रोथ, बट there is no peace of mind for me, so that's why I'm leaving this company। I'm moving on to the next company again, Lotus Chocolate, same story। लोटस चॉकलेट चॉकलेट मैन्युफैक्चर करते हैं। नाउ आई थिंक 3 to 4 quarters बैक दे यूज टू ग्रो गुड, like more than 100% they used to grow, but now what is happening in the Lotus Chocolate, it's a FMCG food company। 25% का ही ग्रोथ है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ यहाँ पे सीधा सीधा डिक्लाइन हो रहा है। एबिटा में कोई ग्रोथ नहीं है, निगेटिव ग्रोथ है, पैट में निगेटिव ग्रोथ है, तो यहाँ पे डिस्कस करने की जैसा कुछ है नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट देर इज नो कॉन कॉल, ऑल्दो दिस इज अ रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज, but no, if they don't do PPT con call, if they're not talking about their business, then why should I invest in such businesses, right? नेक्स्ट कंपनीज अगेन लक्ष्मी गोल्डर्मा, अगेन सेम। ये कंपनी जो है, इसको मैं कौन से बेसिस पे वैल्यू करूँ? रियल एस्टेट के बेसिस पे वैल्यू करूँ या ज्वेलरी B2B के बेसिस पे वैल्यू करूँ? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन हियर। ऑन टॉप ऑफ दैट देर इज नो पीपीटी कॉन कॉल, ऑल्दो दे अचीव्ड 13% का ही ग्रोथ किया है। आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्वार्टर आई थिंक ग्रोथ अच्छा था। आई थिंक 25% का ग्रोथ था, बट नाउ इट इज डिक्रीज टू 13%। सो दिस इज वन मोर रीजन टू नॉट टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर कंपनी एट द मोमेंट। और पैट में कोई ग्रोथ नहीं है, बट गोल्ड B2B सेक्टर है, तो एक ओवरऑल सेक्टर का एनालिसिस करने के लिए ये पॉइंट्स अच्छे होते हैं कि क्या चल रहा है इस क्वार्टर में, राइट? नेक्स्ट कंपनी अगेन टेक्नोलॉजी, IT टेक्नोलॉजी, आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, HCL टेक। ओनली 11% ग्रोथ विथ नो ऑपरेटिंग लेवरेज। इफ यू सी पैट ग्रोथ जीरो, नथिंग टू डिस्कस हियर। Last company which I will discuss for in this particular today's video is another interesting company, rather rock solid company. And if you listen to the con calls na, of this particular company, the person, I'm forgetting his name, uh, I think Firoz, yeah, Mr. Firoz, yeah, he appears in front of all investors with such a confidence.
he knows the business in and out, and that is what I like about this particular company. So लास्ट क्वार्टर अगर आप देखोगे ना, कंपनी का सिर्फ 15% ग्रोथ आया था Q1 FY26 में, एंड स्टिल दे मेंटेन, एंड दे जो गाइडेंस उन्होंने दिया था, उन्होंने बोला था कि हम चलो 15% आए, बट हम 1175 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, और वो होगा 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में इन लोगों ने 571 करोड़ तो ऑलरेडी कर लिया है। एक्सपेक्टेड पैट 375 करोड़ का हो सकता है, विच इज बेसिस द 31% का जो मैंने मार्जिन पकड़ा था। और एयूएम का ग्रोथ, एयूएम का जो टारगेट दिया था 1 लाख करोड़ का टारगेट है। तो Q1 FY26 में 87 करोड़ के AUM थे। नाउ दोस हैव इंक्रीज टू 91,000, ठीक है। तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो 1 लाख करोड़ करना इनके लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो ये यहाँ पे मुझे स्टोरी क्या दिखती है ना, कि ये लोग ना इस गाइडेंस को सरपास कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पे मुझे दिखते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इन Q2 दे हैव अचीव्ड अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 23%, विच इज गुड। So imagine a company which is moving from 15% to 23%, and that's why stock has shown the upside here. EBITDA growth 32%, PAT growth 31%, EBITDA margin is also moving in a positive direction, which is 43 to 46%, PAT margin 31 to 33%. Everything is good. If you see here, यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देख लेते हैं। एम तो ग्रोथ यहाँ पे बढ़ गया है। म्यूचुअल फंड का जो इनकम आता है वो 16% बढ़ गया है, और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में जो इनकम आ रहा है वेल्थ मैनेजमेंट में, दैट इज 28% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो गया, दैट इज गुड। म्यूचुअल फंड्स के जो इनफ्लो है वो ऑलमोस्ट लाइक 101% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो चुके हैं। दैट मीन्स व्हाट, इन्वेस्टर्स हैव ट्रस्ट इनटू दिस पर्टिकुलर कंपनी, दैट्स व्हाई यहाँ पे इन्फ्लोज बढ़ चुके हैं। एंड जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं विच विल विच विच कॉन्टैक्ट्स विद द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स विच आर हैविंग नेटवर्थ ऑफ अराउंड मिनिमम 1 करोड़ का इनका गाइडेंस, इनका ये मुझे जहाँ तक याद है, आई थिंक फ्यू कॉन कॉल्स बैक मिस्टर फिरोज हैज स्टेटेड दिस, दैट दे एक्चुअली परस्यू जो भी क्लाइंट्स है उसमें एटलीस्ट मिनिमम 1 करोड़ तो भी उनका होना चाहिए पैसा उनके पास, तभी वो उसको परस्यू करते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजर्स लाइक दे हैव इंक्रीज टू 386 बढ़ गया है। और जो रेवेन्यू और एक्चुअली क्या बोलूँ मैं इसको, AUM पर रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है, that has also increased from 196 crores to 231 crores. So everything is going in a positive direction for this particular company. बुल मार्केट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दीज आर ऑल इंडिकेशंस ऑफ द स्टार्ट ऑफ द बुल मार्केट, दीज आर ऑल इंडिकेशंस ऑफ द रिवर्सल इन द मार्केट विच आई सी बेसिस द जो लास्ट टू कॉन कॉल्स है। इसका एंजल वन का भी है, एंजल वन का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर आपका 5 पैसा है, एंड दिस वन आनंद राठी अगेन। सो if you see the valuation is definitely rich here. Why? Because growth percentage है अभी 19%, तो guidance है, but I am actually factoring out the surpassed growth which will around 21 to 24% का हो सकता है, which will take us to the forward PE of around 70 to 85 के बीच में रह सकता है। तो आप यहाँ पे 20 to 24% ग्रोथ के लिए आप ज्यादा PE पे कर रहे हो, बट दैट इज जस्टिफाइड बिकॉज दिस इज अ रॉक सॉलिड कंपनी एंड दे हैव नॉट लेट डाउन। तो अगर आप देखोगे इन्होंने अच्छा ही किया है। तो वैल्यूएशंस आर रिच होने के बाद भी वो वैल्यूएशंस को सपोर्ट करता है इनका कंसिस्टेंट ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड, एंड जो फ्यूचर में इन लोगों ने जो गाइडेंस दिया है। सो बहुत अच्छा खासा रनवे इनके पास अभी है, राइट। सो इट्स आई वुड पुट दिस कंपनी इनटू द ब्रैकेट ऑफ स्टडी wealth creator, right? So this is all about all these companies. So what we found out today in today's videos, so Anand Rathi, wealth management, steady wealth creator. Then we found out SG Finser, which is clearly undervalued company. Then we found out this Vari Renewables, again clearly undervalued company. And we found one company which is MB Agro, which is a company of cyclical in nature, and that is a bet for not for those who have a वेरी फेंटेड काइंड ऑफ, उनका जो हार्ट है ना वो कमजोर होता है ना, उनके उनके लिए है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ये कैसे मॉनसून प्ले करता है, राइट। बट द नंबर्स आर सॉलिड। So this is all about today's video. I'll put next video in maybe a couple of hours later. I'll put it, and yeah. So I'll see you in the next video. Till then, thank you so much, and please subscribe and do share this video to your friends and discuss. Thank you so much.